Hello everyone, hope you are understanding your tenses. That is the most important topic of the grammar section. And we are revising grammar for better performance in your examination. Yesterday we finished which class? 8th class according to your high school. And in the section of tenses, what is the name of 8th class? Present. That's right, present. There are 4 sections in 8th class and we have finished all those 4 sections. Today we are moving to the 9th class. And the name of the 9th class according to the tenses school is past tense. And today we are not going to describe each and everything in detail. We are going to do it in a different method. We are going to compare it with 8th class, that is present class. Why are we doing that? We are doing it for 2 reasons. One, we will be revising present tense and we will be comparing it with the next class, that is 9th class, past tense. That way you will understand that grammar is not for mugging up, grammar is for clarity. अगर 8th क्लास का सारा सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया, 9th क्लास का सब्जेक्ट उसके ऊपर सेम सिमिलर मेथड में बनेगा, आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा. So let us move to the first section, present indefinite 8th क्लास में, उसका नाम अब 9th क्लास में है past indefinite या past simple. प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, साथ में एस लगाया था. अब आज हम करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट. इसमें क्या होगा? इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी. नोटिस कीजिए, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी. और सेंटेंसेस कैसे होंगे? लेट मी शो यू दैट. आई प्ले, आई प्लेड. शी गो, शी वेंट. I eat, I ate. Verb की first form, verb की second form. That's all you have to remember, and this is your present and past indefinite section for both the classes 8th and 9th. That is present as well as past. So अब इसका structure समझते हैं. Structure दिखने में कैसा होगा? Structure बिल्कुल simple होगा. Subject plus V2, that's past indefinite tense. और इसका यूसेज कहां होगा, इसका इस्तेमाल कहां होगा? इसका यूसेज होता है जब कोई काम खत्म हो गया हो. अपनी बॉडी को हमेशा याद रखिए, दिस इज द प्रेजेंट टाइम. बॉडी आपकी प्रेजेंट टाइम है, बैक आपकी पास्ट टाइम है, आंखों वाली साइड आपकी फ्यूचर टाइम है. दैट्स वेरी सिंपल. सो जो काम पीठ वाली साइड चला गया, दैट इज पास्ट. आई फिनिश्ड, आई स्टडीड, आई वेंट, आई एट, सारे पास्ट के काम हैं. इनको बताने के लिए आपके पास कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल सेंटेंसेस के लिए. विद दैट वी आर मूविंग ऑन टू द सेकेंड सेक्शन ऑफ 9th क्लास, विच इज 9th B according to your high school. But according to the school of tenses, what will be the name for 9th B? Past continuous. Very good, past continuous. What will be the name in the 8th class? Present continuous. If it is present continuous in the 8th class, it is past continuous in the 9th class. It's as simple as. Let me explain it once again. We are starting from this section now. This is section B according to high school, and the name of this section in your tenses school is past continuous. What was the name in the 8th class? Present continuous. Present continuous. अब इसमें हम past को compare करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर आपको याद हो, वर्ड कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है कोई काम अभी चल रहा है, जारी है. प्रेजेंट का मतलब होता है अब के टाइम में, राइट नाउ. और अब इसको कंपैरेटिवली देखते हैं पास्ट में कैसा होगा. कॉन्टिन्यूअस का मतलब अभी भी चल रहा है, राइट. पास्ट का क्या मतलब हो जाता है? जो काम पास्ट टाइम में हो, पुराने टाइम में. अब दोनों को कंपेयर करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपके पास क्या फॉर्मूला था? मैं एक बार आपको रिकॉल करवा दूं. यस, is or verb the first form and ing. Very good. So she is telling me exactly the same way. Subject plus is plus V1 plus ing. ये आपकी 8th क्लास थी. अब आपकी 9th क्लास में सेम चीज, सब्जेक्ट प्लस is को उधर से चेंज करके यहाँ was verb लगा देना. That's all. Remaining everything is going to be the same. is का मतलब होता है हूं या है. was verb का मतलब होता है था, थे या थी. दैट्स ऑल, क्योंकि ये पास्ट की बात है.
सो इसका स्ट्रक्चर एक बार फिर से देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 प्लस ING. वॉज किसके साथ? सिंगुलर चीजों के साथ, सिंगुलर पर्सन, वन पर्सन के साथ. वर किसके साथ? मोर देन वन पर्सन के साथ. एंड दैट्स ऑल. दिस इज ऑल. अब आपको इसके यूसेज या इसके स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस को देखना होगा. आई वॉज टीचिंग yesterday. She was reading yesterday. We were talking in the morning. कोई काम जो पहले हो चुका, खत्म हो गया, करते रहे लंबी देर तक, उसके लिए आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस में एक्सप्लेन करना होगा. होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ लेट मी टेक यू टू द थर्ड सेक्शन ऑफ 9th क्लास, विच इज, नाम बताइए जरा. Past perfect. वेरी गुड. पास्ट परफेक्ट क्लास. आपके 8th सेक्शन में आपका उसका नाम था प्रेजेंट परफेक्ट. यहां पे अब उसका नाम हो गया पास्ट परफेक्ट. परफेक्ट का मतलब होता है डन थिंग. प्रेजेंट का मतलब है अभी का टाइम. पास्ट का मतलब है पीछे वाला टाइम जो बीत गया. बिल्कुल सिंपल, कंपैरेटिव स्टडी से इजी हो जाता है. प्रेजेंट इनडेफिनिट में आपके पास ये फॉर्मूला था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3. रिमेंबर, हैज हैव, चार चीजों के साथ हैज, चार चीजों के साथ हैव. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था. अब इसको तो मैंने और भी सिंपल कर दिया. यहां काम ही खत्म, वो कंफ्यूजन ही खत्म. यहां सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3. हैज हैव भी इजी हो गया, वो भी कंफ्यूजन नहीं है. हर प्रोनाउन के साथ हैड ही लगाना है, एक ही है, इसलिए कोई कंफ्यूजन भी नहीं. वर्ब की थर्ड फॉर्म है. अब देखते हैं इनको कंपैरेटिव स्टडी में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस कैसे होंगे. एक एग्जांपल के लिए हम स्टार्ट करते हैं. आई हैव फिनिश्ड माय वर्क. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है. अब इसका हैव की जगह सिर्फ एक ही वर्ड चेंज होना है, दैट इज आई हैड फिनिश्ड माय वर्क. फिनिश्ड वही पार्ट V3 रहेगा. आई के साथ हैड लगना है क्योंकि और कुछ है ही नहीं है, और ये बन गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस. They had learnt the lesson. They had talked to me. They went to market yesterday. कुछ भी किसी के साथ भी had ही लगना, इसलिए ये बिल्कुल easy रहेगा. Now let me take you to the D section, which is दो sections को मिलके बना. नाम बताइए जरा. Past perfect continuous. वेरी गुड. पास्ट, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. परफेक्ट पहला हमारा इससे ऊपर वाला सेक्शन, कॉन्टिन्यूअस उससे भी ऊपर वाला. सो दोनों को मिला के अब हमने आज ये 4th वाला सेक्शन बना रहे हैं, पर इसको कंपैरेटिव करेंगे 8th क्लास के पास्ट से ना करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से. रिमेंबर, कुछ पोर्शन कॉन्टिन्यूअस से लिया, कुछ परफेक्ट से लिया, और दोनों को मिला के एक नया आलू मटर की सब्जी बनाई. कल हमने सब्जी, आज हम उसको पास्ट में कर रहे हैं. पास्ट वर्ड का सिर्फ मतलब ही ये है कि काम पिछले टाइम पे हो गया है, पुराने टाइम की बात है. तो अब हमारा आज का ये दोनों चीजों को मिला के कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए. सब्जेक्ट प्लस हैड, क्योंकि यहां सिर्फ हैड ही है परफेक्ट के पास, प्लस बीन प्लस कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होता है V1 प्लस ING. ये आपका स्ट्रक्चर हो गया. सिंस और फॉर मैंने कल आपको बताया ही था. दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है. सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, काम कहां से शुरू हुआ, पॉइंट जहां उंगली रखी जा सके वहां से. फॉर का मतलब पीरियड ऑफ टाइम. तो हमारे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे. आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश. बताइए आगे. सिंस 1980. बहुत बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे. मैं एग्जाम्पल से समझाने के लिए ये एग्जाम्पल्स दे रही हूँ. अब आप एक और अपनी तरफ से कोई सेंटेंस बना के ट्राई करो. वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours. That's all. This is as simple as that. अब इन चारों सेक्शंस को रिवाइज करने के लिए एक मैंने छोटा सा आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिया है, उसको ट्राई कीजिए और नीचे अपने कमेंट्स में आंसर लिखिए, so that I could understand that you are following the structures. And if you have any confusion, don't forget to ask me again. I am here to help you, your own Mangat ma'am, with that love from my side.